Define alpha, beta, and gamma. Alpha, beta, and gamma. Define alpha, beta, and gamma. So we know alpha is equal to what? Yes, Shadari, alpha is equal to what? That is equal to delta L upon original length into rising temperature. What is beta? Beta is equal to what? That is equal to delta A upon original area into rise in temperature. What is gamma? Change in volume divided by original volume into rise in temperature. Okay. So how you will define? Write down. Alpha को define करोगे. It is defined as alpha. The coefficient of linear expansion alpha is defined as change in volume, change in length, defined as change in length per unit original length, per unit original length, per unit rise in temperature, per unit rise in temperature, per unit rise in temperature. And how you will define beta? The coefficient of superficial or area expansion. The coefficient beta is defined as change in area per unit original area per unit rise in temperature, per unit rise in temperature. And cubical coefficient of cubical expansion is defined as change in volume, change in volume per unit original volume, per unit rise in temperature, per unit rise in temperature. ओके और इन तीनों को बेटे हमने देखा था इनका क्या था बोलो सवाल इनका पर केल्विन ओके पर केल्विन. Write down next question, very important. Draw the graph between cubical expansion and temperature, between coefficient of cubical expansion. Draw the graph between coefficient of cubical expansion and temperature for copper. For copper. Okay, तो देखो बेटा इधर ऐसे बनेगा ग्राफ. Cubical expansion along y-axis we are taking gamma and here we are taking temperature. Let here is temperature 250 Kelvin, 250 Kelvin, degree Celsius. Here you can take let 500 degrees Celsius. Here you can take 750 degrees Celsius. Temperature is increasing towards x-axis and gamma is increasing towards what? Y-axis. Gamma is increasing and the value of gamma is taken 10 raised to power minus 5 per Kelvin. 10 raised to power minus 5 per Kelvin. This is volumetric expansion. So, when the temperature of a cube of made of copper, this is for copper, okay, only. When a cube made of copper is heated and its temperature is increasing, then the coefficient of cubical expansion that increases like this. And when the temperature reaches at what? 500 mark, after that the graph becomes parallel to x-axis. It becomes parallel to x-axis. This is the specialty of the copper that after 500 degrees Celsius there is no increase in the volume of copper cube. Okay, that is why this only is given. This is the specification of this copper. When we increase the temperature, then we see that the
coefficient volume is also increasing, but at 500 degree or after beyond 500 degree Celsius, the curved part is finished and only the graph is linear and parallel to x-axis. Means you are increasing the temperature to 758, 109, 110 and okay degree Celsius, but there will be no increase in gamma or coefficient of cubical expansion. Or beyond 500 degrees Celsius, the expansion of copper cube that stops. Okay, or you can say at 500 degrees Celsius, the density of the copper is minimum. Okay, डेंसिटी एक्सपेंशन जब ज्यादा हो जाएगी मैक्सिमम होगी तो डेंसिटी मिनिमम होगी ना. एक्सपेंशन कितनी होगी? एक्सपेंशन इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी रो इज व्हाट? मिनिमम at this point 500 degrees. Okay, here should I write down applications of elasticity, applications of linear expansion or thermal expansion, applications of linear expansion or thermal expansion. यस बेटे मैं इनको ऐसे डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पता होगा सब कुछ. हाँ यस, नंबर 1 आपने देखा होगा हमारे घरों में यूजुअली हो जाता है, क्या होता है बोलो शाबाश, स्टील का एक गिलास लें उसको दूसरे में डालें. जैसे हम जाते हैं लंगर में तो वहां पे 50-100 गिलास लेके कोई बनता चला होता है ना, तो कोई ना कोई 2 गिलास ऐसे होते हैं वो बीच में फंस जाते हैं ना. ओके, अब उनको निकालते मरो, ठीक है, जितना मर्जी जोर लो, निकलते नहीं है. तो उस टाइम फिर हम क्या करते हैं, बुजुर्ग क्या कहते हैं हमको कि ऐसा करो, जो बाहर वाला गिलास है ना, बाहर वाला, ये 2 गिलास है देखो, एक अंदर है एक के बाहर है, ये जो बाहर वाला गिलास है इसको क्या करो, पानी में डाल दो, गर्म पानी में, तो एकदम क्या होता है, ये एक्सपैंड हो जाता है और अंदर वाला एक्सपैंड नहीं होता, तो एकदम निकल जाते हैं बाहर. ओके, आपने केमिस्ट्री लैब में देखो आज जितनी भी केमिकल्स की बड़ी बड़ी बोतल है, KMnO4 रखा होता है वगैरह वगैरह. ओके, तो उनमें जो होता है ऊपर ना जैम एक ग्लास का स्टॉपर लगा होता है, ढक्कन है ना. सम टाइम क्या होता है अगर हम उसको यूज ना करें 2-3 साल तक उसको यूज ना करें तो उसको जैम हो जाता है. तो उसको खोलने के लिए भी हम ये यूज करते हैं ना, उस बोतल के ऊपर गरम गरम पानी फेंकते हैं. गरम गरम पानी से क्या होता है, जो नेक है बोतल की, जो नेक है वो एक्सपैंड हो जाती है. ओके, और मोर ओवर आज भी देखो आपके मम्मी डैडी आपको क्या करते हैं, जब आप छोटे थे आपकी भी नेक आजकल क्या हो जाता था, गला जाम हो जाता था. तो अब आपके ऊपर गरम गरम उबलता पानी थोड़ी फेंकना मम्मी डैडी ने. तो इसके लिए चले हुए विक्स है ना, विक्स आप लगाते हैं या कोई और ऑइंटमेंट लगाते हैं, उससे फिर एकदम मम्मी डैडी आपको कवर कर देते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है आपकी जो पाइप होती है वो ओपन हो जाती है ना, इजीली आपको सांस आने लगती है. और नंबर 2 बेटे रेलवे लाइंस होती है, देखा होगा आपने, ठीक है, रेलवे लाइंस होती है तो एक रेल के बाद दूसरी रेल जब जोड़ी जाती है, 2 रेल के बीच का जो होता है क्या होता है बोलो, थोड़ा सा गैप छोड़ा होता है, छोड़ा होता है बोलो. समर के सीजन में, ठीक है, कई कंट्रीज में टेम्परेचर होता है 53 तक चला जाता है. ओके, तो उस टाइम में हमने कल पढ़ा था कि चेंज इन लेंथ होता है, दैट इज डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर एंड दैट इज आल्सो डायरेक्टली लेंथ. तो नंबर 1 जो रेल होती है इसकी लेंथ काफी बड़ी होती है, मेरे ख्याल से अबाउट 40 मीटर के करीब एक रेल होती है. तो इसकी लेंथ उस हिसाब से बढ़ेगी, तो ये भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी. और अगर सपोज करो इनके बीच में गैप ना रखो तो जोड़ दिया गया हो तो एक दूसरे को धक्का देंगे ना, उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस. वो आगे बढ़ते हैं थर्मल स्ट्रेस और उसकी वजह से टेढ़ी हो जाएंगी. ओके, तो ताकि टेढ़ी ना हो समर्स के सीजन में अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट. आपने देखा होगा आपके घर में चिप्स पड़ी होगी, देखो स्कूल में देखो चिप्स पड़ी है यहाँ पे ना, तो देखो होगा आपने ना यहाँ पे स्क्वायर बनाए जाते हैं ऐसे, स्क्वायर के बाद ग्लास लगाया जाता है या कोई ग्राउंड वगैरह कोई थोड़ा दूसरा सॉल्यूशन भरा जाता है ना. हर एक स्क्वायर के बाद होता है, ठीक है, आपने देखा होगा आप अपने घर के बाद निकलेंगे, म्युनिसिपैलिटी का जो रोड है, ठीक है, रोड में भी जो कंक्रीट डाला हुआ है वो स्क्वायर में डाला हुआ है. एक स्क्वायर पहले यहाँ पे डालते हैं, ओके, और अगला स्क्वायर वो यहाँ पे डालते हैं, फिर तीसरा स्क्वायर वो यहाँ पे डालते हैं. ओके, ऐसे कंटिन्यू करते हैं और अगले दिन आके या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद स्क्वायर को डालते हैं. देखना आपको उसमें रोड में ना ऐसा बड़ा होता है, वो इसलिए होता है बेटे
उसमें ग्लास डाल दे जाते हैं या कोई और कंक्रीट के सॉरी रेत वगैरह या कुछ डाल देते हैं, ताकि समर के सीजन में क्या होगा, ये जो कंक्रीट होगा ये एक्सपैंड हो जाना, और जब एक्सपैंड होगा तो फिर ये एक स्ट्रेस डालेंगे, दूसरे को उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ओके, और उसके बाद फिर ये टूट जाएगा। जितने भी ट्रॉपिकल रीजन हैं वहां पे जो रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स ट्रॉपिकल एरिया कौन होते हैं, तो खास कर तो आपको एसएसटी वाले ज्यादा बताएंगे, लेकिन ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे दिन में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रात को बहुत ठंडा हो जाता है, कोल्ड है ना, तो वहां पे जो रॉक्स हैं वो रॉक्स क्या होती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और रात के टाइम में ठंडी होने लगती है। अब इतनी बड़ी रॉक होगी वो एकदम थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, तो उसका कुछ अंदर वाला हिस्सा गर्म रहता है, बाहर से ठंडी होती है, इसलिए वो क्रैक हो जाती है ना। पहले बड़ी रॉक के 2 टुकड़े हुए, फिर उन 2 टुकड़ों में और टुकड़े हुए और टुकड़े हुए और टुकड़े, इसलिए वो सैंड बन जाता है ना, टूट टूट के वो सैंड बन जाता है। और नेक्स्ट आपने देखा होगा जो बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इसके ऊपर पोल्स के ऊपर देखी होगी आपने, टावर्स के बीच देखी होगी ना, इलेक्ट्रिक जो वायर टावर्स के बीच के आपने देखा होगा बीच में से वो छुपी रहती है, मतलब थोड़ी सी लूज बांधी होती है वो बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। जी बेटा। सर आपकी स्क्रीन ना काफी ब्लरी हो गई है। बेटा डोर क्लोज करो बेटे, बाहर ना सामने जो है धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, वो जो बिल्डिंग है ना, अब इसमें जो कर्टन कर्टन वगैरह तो लगे है नहीं है ना, मैंने ट्यूब भी कोई नहीं जला रखी है। अब देखो अब कैसा है। हाँ जी बेटा। नो सर, ब्लरी है अभी भी। सर ब्लर आ रही है। सर वीडियो भी पॉज है। वीडियो पॉज नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। सर आपकी वीडियो बीच बीच में ना पॉज हो रही है। मैंने तो मैम छेड़ा नहीं, मैं तो माउस से टच ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने देखा होगा बेटा, मैं बता रहा था आपको ना, जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं केबल्स हैं वो ऐसे बिल्कुल पोल्स के बीच में टावर्स के बीच में बिल्कुल सीधी खींच के बात नहीं होती है, लेकिन उनको ऐसे रखा था कि बीच में से थोड़ी सी पीली होती है, ओके, प्ले होता है। उसी कारण होता है कि सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा और हो जाएगी, सीधी हो जाएगी ना। लेकिन आगे इनको पहले ऐसी तरह का हो तो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करेंगे वो साहस, एक कंप्रेशन डालेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, तो रोल को स्ट्रेंथ डालेंगे, ठीक है, जिससे और रोल को तोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट आपने देखा होगा बसंती वाला टांगा, देखा? यस स्टूडेंट्स, लोकेश। यस सर। बसंती वाला टांगा देखा ना? यस सर। हाँ, यस उसका जो सर। व्हील होता है बेटा लकड़ का बनाया होता है ना, लकड़ का व्हील होता है, बनाया होता है, और उसकी जो रिंग, उसकी जो स्पोक्स होती है वो भी लकड़ की होती है ना। लेकिन फिर ये टूटता नहीं है, क्यों नहीं टूटता, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे ना लोहे का एक क्या रिंग चढ़ाया जाता है। कोई जो लोहे का रिंग होता है इसको बनाते कैसे हैं, जितना इसका क्या सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस उसके बिल्कुल एक्यूरेट होके ये लोहे का रिंग बना दिया, इस रिंग का सरकमफ्रेंस है वो आउटर सरकमफ्रेंस है मीटर के बराबर, ओके। अब इस लोहे के रिंग को गर्म करते हैं ना, आग में डाल देते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो फैलता है। अब इसकी सर्कमफ्रेंस जो है लोहे के रिंग की, वो टायर की सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होती है, और इसके बीच में फिर इस टायर को रख देते हैं, ओके, और एकदम इसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, पानी एकदम फेंकने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये व्हील को इसको पकड़ लेता जोर से ना, और फिर निकलता नहीं है। नेक्स्ट बेटे, पेंडुलम देखा होगा आपने, पेंडुलम देखा, पेंडुलम क्लॉक्स? यस गुरप्रीत। यस सर। यस सर। क्लॉक देखिए, यस देखो सर। बेटे पेंडुलम जो क्लॉक होती है ना, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, ये पेंडुलम है क्लॉक का, ओके। इसकी जो लेंथ है इसको बोलते हैं लेंथ, यहाँ तक सेंटर तक जो उसका पॉइंट है इसको बोलते हैं, ओके, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। दिस इज, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस, और उसको बोलते हैं सेंटर जो है इसका पेंडुलम का नीचे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पोल। So distance between the point of suspension and point of oscillation is called length of the pendulum.
and the time period of इसका जो टाइम पीरियड होता है इसका ऑसिलेशन का एक ऑसिलेशन का that is equal to 2 pi under the root L upon G where L is the length and G is the acceleration due to gravity. अब देखो अगर ये पेंडुलम मान लो आयरन का बनाया हो या स्टील का बनाया हो या एसिड का बनाया हो जिसकी लेंथ जो है सर्दियों में और गर्मियों में चेंज हो रही है, आपको समझ आ रहा है? यस सर। तो लेंथ चेंज होगी तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो मींस गर्मियों के दिनों में इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड उसका ज्यादा हो जाएगा। मींस वो मान लो 1 घंटा बढ़ गया दिन, ले जी 25 घंटे का दिन हो गया। सर्दियों में जिस दिन बाहर 0 टेम्परेचर हो गया उस दिन इसकी लेंथ कम हो गई और दिन जो होगा तो 22 घंटे का हो गया। 22 घंटे का नहीं होगा, मतलब 1-2 सेकंड में कमी आएगी ना कुछ। यस सर। ताकि बेटे इसकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज ना करे, ठीक है? निकल और स्टील, निकल एंड स्टील का एलॉय होता है, उस एलॉय को बोलते हैं निकल प्लस दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड इनवार। इनवार जो होता है, ठीक है, इसकी जो बेटे एक्सपेंशन होती है इसके ऊपर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता होता है। टेम्परेचर कितना कम हो जाए कितना राइज करे, लेंथ ऑफ दिस मटेरियल made in war of which the pendulum is made does not change and hence the time period of the oscillation of the pendulum and the clock that remains constant. Remember in war is an alloy of copper and steel. Okay beta? Yes, next is write down thermal stress. Thermal stress. Thermal stress. Thermal stress और compressive stress. Thermal stress और compressive stress. देखो बेटा ये दो rigid bodies हैं. These are two rigid bodies. ओके, दो दीवारें हैं, दो दीवारों के बीच में मैंने एक लोहे की रॉड लगा दिया ना, ये आयरन रॉड है और जैसे जैसे मैं इस रॉड का टेम्परेचर क्या करूंगा वो सोर्स इंक्रीज करूंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अब ये दीवारों को तो धक्का नहीं दे सकता, दीवारों को नहीं गिरा सकता, लेकिन दीवारें इसके ऊपर उल्टा क्या डालेंगी? वो डालेंगे फोर्स डालेंगे, उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्या डालेंगे? ये जो दीवारों के ऊपर डालेगा उसको थर्मल स्ट्रेस डालते हैं और दीवारें इसके ऊपर डालेंगे उसको क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस। वी नो कल हमने पढ़ा था बेटे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइजिंग टेम्परेचर। सो देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट? It is equal to alpha into length upon delta t and change in dimension per original dimension is called strain. Change in length upon original length is called strain. So therefore strain is equal to alpha into delta t. This is equation number 1. We know Young's modulus is equal to what? That is equal to thermal stress divided by strain. Thermal stress by strain और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा क्या आ जाएगा वो सॉल्व। thermal stress is equal to y into strain. y है Young's modulus, गामा ना बनना इसको, ओके? So therefore strain is equal to what? That is equal to alpha delta t. So it is equal to alpha delta t into y. And therefore what is the force? Force exerted by the walls on the rod or by the rod on the wall. Force is equal to pressure into area. What is stress? Stress is force per unit area. So therefore it is equal to thermal stress into area, capital A. So therefore F is equal to what? F is
equal to alpha into delta T what by ये तो आ गया thermal stress into area. So this is the force exerted by the rod on the walls or by the wall on the rod. Okay. Yes, sir. इस टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हो तो उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस. Thermal stress, if delta T increases, then it is called thermal stress. और अगर टेम्परेचर delta T का और डिक्रीज करेगा तो उसको बोलते हैं compressive stress. Compressive stress, that is called compressive stress. If you increase the temperature, then the stress is called thermal stress, and if you decrease the stress, then the stress is called compressive stress. Compressive stress. Yes, beta. Write down next. Expansion of liquids. Expansion of liquids. Expansion of liquids. Yes, number one. Write down number one. Apparent expansion of liquid. Apparent expansion of the liquid. Apparent expansion of the liquid. It is denoted by gamma A. It is denoted by gamma A. Yes, बेटा listen. अगर आपने किसी लिक्विड को हमने हीट करना हो, जैसे हम मान लो एक लोहे की रॉड को हीट करना हो, तो लोहे की रॉड को हम डायरेक्ट किससे टच करते हैं, प्लेन के ऊपर रख देते हैं ना, उसकी जो एक्सपेंशन होती है वो रियल होती है. लेकिन जब हमने लिक्विड को हीट करना हो तो क्या करते हैं, बोलो शाबाश, उसको हमें किसी कंटेनर में रखना पड़ता है. अब कंटेनर अगर स्टील का मान लो बर्तन है तो स्टील की एक्सपेंशन कुछ और होती है. ओके, और जो वाटर होगा या लिक्विड होगा उसकी एक्सपेंशन कुछ और होगी. ओके, तो इसका मतलब जो एक्सपेंशन होगी वो उसके बीच में दोनों एक्सपेंशन होगी, सॉलिड की भी होगी और लिक्विड भी होगी. दैट इज कॉल्ड अपैरेंट. ओके, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन गामा A is defined as observed increase in volume. Observed increase in volume divided by original volume into rise in temperature or increase in temperature. So therefore, coefficient of apparent expansion is defined as observed increase in what volume per unit original volume per unit rise in temperature. तो इसका भी यूनिट क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम का यूनिट से वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा आपके पास पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. लिसन, देखना बेटा, आपने आज क्या करना, एक गुब्बारा लेना, एक आपने लोहे की रॉड लेनी जैसे होती है वो साइकिल की स्पोक, और एक आपने कटोरी लेनी. ओके, कटोरी लेके मतलब एक्सपेरिमेंट करना कि तेल पाके नहीं निकल जाना छानी देवता को मांगने. ओके, तो आप देखेंगे अगर आप लोहे वाली रॉड को उसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा ये एक्सपैंड हुई भी कि नहीं हुई हीट करके. ओके, और अगर आप आपके चूल्हे के पास आप एक इन्फ्लेटेड बैलून रखेंगे तो आप देखेंगे जो इन्फ्लेटेड बैलून है वो धीरे धीरे क्या होगा, इन्फ्लेशन उसकी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक टाइम आके फट भी जाएगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा. अच्छा, अब आपने कटोरी के बीच में पानी डाला हुआ है, पूरी की पूरी कटोरी आपने पानी भरी है
और इसमें अगर एक बूंद डाल तो बूंद नीचे गिर जाती है। ओके, एक ड्रॉप इसकी एक्स्ट्रा डाल दें तो वो एक्स्ट्रा नीचे, मतलब कटोरी पूरी भरी है। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, वायर बॉल या वायर बॉल के नीचे आपने फ्लेम लगा दी। जैसे बेटे ये हीट करेगा, ठीक है, आप देखिए इसमें से पानी अपने आप बाहर जाएगा ना। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे पानी अपने आप बाहर आएगा। इसका मतलब जितना पानी बाहर आ रहा है उसको आप कलेक्ट कर लो, मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट करो उसको, ठीक है, और उसको 100 डिग्री तक इसको क्या करो, गर्म करो। तो देखेंगे आप जितना भी वो आएगा वो मेजरिंग सिलेंडर में, या जैसे सिरिंज होती है ना, सिरिंज उसके ऊपर लिखे होते हैं है ना, इतने ml इतना वॉल्यूम में इसका इंक्रीज हुआ। मतलब देयर इज समवट, मतलब एप्रिशिएबल इंक्रीज इन दी वॉल्यूम। तो सॉलिड के केस में बड़ी एप्रिशिएबल नहीं होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन लिक्विड में पता चल जाता है, और जो गैसेज हैं उनको तो पता चल ही जाता है ना। जितने भी तूफान आते हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां भी सैंड होता है वहां भी सन की लाइट से सैंड एकदम गर्म हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा मूंगफली वगैरह या दूसरा जो होता है जो बनाते हैं पॉपकॉर्न वगैरह ना, सैंड के बीच में, रेत के बीच में घूमते हैं ना, इसीलिए क्योंकि उसमें क्या होता है वो हीट एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे जो सैंड होता है वो एकदम गर्म हो जाता है, और गर्म होने की टच में या एयर है वो भी गर्म होती है। गर्म होने के कारण ये एयर ऊपर चली जाती है। अब सैंड जितना गर्म होगा, एयर जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी हल्की होगी, उतनी स्पीड से ऊपर जाएगी, और जितनी स्पीड से ऊपर आएगी किनारे वाले रीजन से ठंडी हवा भी यहाँ पर तेजी से आएगी। तो जिस रीजन से ठंडी हवा आएगी तेजी से, उस रीजन में तूफान आ गया ना। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट, रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, real expansion is defined as real expansion. The coefficient of real expansion is denoted by gamma r and is defined as real increase in volume per unit original volume, per unit rise in temperature, per unit rise in temperature. ओके, तो इसका भी यूनिट क्या बेटा बोलो शाबाश, डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। यस, नेक्स्ट बेटा जी राइट डाउन, रिलेशन बिटवीन गामा ए एंड गामा आर relation between coefficients of real and apparent thermal expansions of liquid, or relation between gamma A and gamma R. देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना इधर, here is our flask, here is a flask, it is of very thin neck, इसका जो गला वो बहुत पतला है, और ये राउंड है, ओके, राउंड फ्लास्क बट विद फ्लैट बॉटम, बॉटम इसका फ्लैट, ओके, और आपने क्या किया, हमने इसको सॉरी बेटा मैं यहाँ से ना लिंक को डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये आपने लिख लिया रिलेशन बिटवीन गामा आर एंड गामा ए? Yes, sir. ओके हाँ, ये बेटे मैंने एक फ्लास्क लिया ना, फ्लास्क ये राउंड है लेकिन इसका बॉटम फ्लैट है, ओके, और इसकी जो नेक है वो बहुत लंबी है और पतली बहुत है, ओके। लिसन, इसको मैंने एक पॉइंट तक जो है भर लिया पूरा पानी से, ओके ओके। Yes, sir. अब बेटे मैं क्या करूंगा, इस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है पानी, अब इस पूरे के पूरे फ्लास्क को मैं पूरे के पूरे फ्लास्क को क्या करूंगा, मैं
इसको गर्म पानी के बीच में डाल दूंगा, उबलते पानी के बीच में। तो लिसन, मैं ऑब्जर्व करूंगा इनिशियली क्या होगा, ये जो वाटर का लेवल ए था पहले बी तक आएगा, कब तक आएगा, बी तक आएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है वो पहले एक्सपैंड हो जाएगा। जब ग्लास एक्सपैंड होगा तो वाटर का लेवल गिर गया। अब जितना वाटर ने एक्सपैंड होना था उतना हो गया। अब क्या एक्सपैंड हो रहा है, अब वो हीट वाटर को जा रही है, इसके अंदर जो वाटर है, और बाद में धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और कहां तक चला जाएगा, सी तक। ओके, तो इसको बोलेंगे हम क्या, ए टू सी है, ए टू सी में इसको बोलेंगे हम क्या, रियल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और ये जो ए टू बी था दैट इज अपरेंट, ए टू बी को बोलेंगे अपरेंट एक्सपेंशन। तो देयरफॉर अगर इस ग्लास की जो एक्सपेंशन है वो ग्लास की एक्सपेंशन कितनी है, गामा जी, देन रियल एक्सपेंशन, सॉरी real expansion, coefficient of real expansion gamma r is equal to coefficient of apparent expansion plus coefficient of expansion of glass plus coefficient of expansion of glass। ये समझ आ गया आपको एक्सपेरिमेंट बेटा जी? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये आपको समझ आ गया? देख लो इधर, इधर देखो बेटा, मैं एक बार फिर समझा दूं उसको आपको। लिसन, ये जो था राउंड बॉटम नहीं है, दैट फ्लैट बॉटम, लॉन्ग नेक, नो लॉन्ग एंड थिन नेक फ्लास्क है। इसके बीच में मैंने ए लेवल तक क्या कर लिया, वाटर को फिल कर लिया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वाटर को फिल कर लिया। उसके बाद मैंने ये जो इसका राउंड वाला हिस्सा है इसको एकदम उबलते पानी में डाला। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसका जो लेवल है पानी का ए से गिर के कहां पे आ गया, बी पे। वो क्यों आया? क्योंकि जो ग्लास है, इसका जो ग्लास है कंटेनर का, वो गर्म हुआ और वो एक्सपैंड हुआ। जब वो एक्सपैंड हुआ तो पानी का लेवल क्या हो गया, नीचे आ गया। अब ग्लास में जितना एक्सपैंड होना तो हो गया। अब इसके ऊपर जो है, ठीक है, अब अंदर का जो पानी है वो हीट ऑब्जर्व करेगा और वो एक्सपैंड होगा। तो अब पानी का लेवल बी से बढ़ के ए पे गया और ए से बढ़ के सी तक चला गया ना। ओके? Yes, ओके, sir. हाँ यस। तो इसको बोलते हैं बेटे, ए टू सी को बोलते हैं रियल एक्सपेंशन और ए टू बी को बोलेंगे व्हाट, अपरेंट एक्सपेंशन। और अगर एक्सपेंशन ऑफ दी ग्लास कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इज गामा जी, देन रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अपरेंट एक्सपेंशन प्लस गामा जी। बेटे गुरप्रीत के कौन लगा रहा है टोपी? गुरप्रीत खुद ही लगा रहे हो? यस बेटा जी। रूपाली मैम कितना टाइम रहता है? सर 3 minutes। 2 पॉइंट समथिंग। हाँ बेटा जी, राइट डाउन, यू राइट दी हेडिंग। कल कर लेंगे हम, कल नहीं परसों करेंगे, 2 पीरियड है। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी with temperature, ओके। डेंसिटी को कितने बेटे हम रोज है ना, ओके। और टेम्परेचर को क्या लिखते हैं हम, सास। और मैडम, और prove that with rise in temperature, the density of solids, liquids and gases, decreases, and vice versa, if a liquid of density rho, is contained in a container at temperature T, capital T,
capital T. Now, if the temperature is increased by delta T, now if the temperature is increased by delta T, that is T dash is equal to T plus delta T, then the density of the liquid or solid that becomes rho dash is equal to what? Rho dash is equal to what? That will become rho dash, okay? Then let the density that becomes rho dash, okay? We know density is equal to mass upon volume, okay? And similarly, rho dash is equal to mass upon V dash. What is V dash? जो वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हुआ, ओके? Therefore, rho dash is equal to m upon V dash, okay? And V is equal to what? From here, V is equal to m upon rho, and V dash is equal to m upon rho dash. M upon rho dash, okay? We know according to Charles' law, we know that B dash is equal to P into 1 plus gamma into delta T. V dash is equal to V into 1 plus gamma delta T. Or Charles' law states that the volume of given mass of a gas increases or decreases by an amount of 1 upon 273.15 of its original volume for each degree rise or fall in temperature. So therefore, V dash की वैल्यू कितनी है बेटा? M upon rho dash is equal to M upon rho into 1 plus gamma into delta T. Okay? और M से M कैंसिल कर लो. So therefore, ये आगे बढ़े मेरे पास क्या आ गया? Rho dash आप ऊपर ले जाओ. Rho dash is equal to what? Rho into 1 plus gamma into delta T raised to power -1. Raised to power -1. And now by applying binomial theorem, I can write rho dash equal to rho into 1. अब पावर यहाँ पे आ जाएगी तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस गामा into डेल्टा टी. तो देखो बेटा, राइजिंग टेम्परेचर में जो डेंसिटी जो कम हो गई है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? रो. इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो रो माइनस रो into गामा into टी. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सेकंड फैक्टर इंक्रीज होगा. मीन जो ओरिजिनल डेंसिटी थी उसमें से टेम्परेचर के इंक्रीज होने में से डेंसिटी और कम होती जाएगी ना. तो इट प्रूव्स दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, एंड डेंसिटी ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी. ओके? यस बेटे. मैम प्लीज मीटिंग ऑफ कर दें, बेल हो गई है, अब छुट्टी हो गई बच्चों को. ओके सर. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटे.